Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Women's health encompasses a myriad of conditions that profoundly influence quality of life. Among these, uterine fibroids stand out due to their prevalence and impact. These benign growths can lead to several reproductive challenges. Despite their common occurrence, fibroids often remain under-discussed, leaving many women without essential information and support. By fostering open conversations and enhancing awareness, we empower women to navigate their health journeys with confidence and make informed decisions. This discussion aims to delve into the complexities of uterine fibroids, shedding light on their significance and exploring solutions that prioritize women's well being and overall health. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from Tip Media. Today, we are delving into the topic of uterine fibroids, a condition significantly impacts women's health. So, to provide us with expert insights, we have with us the distinguished medical expert, Dr. Sarita Kumari. Dr. Sarita Kumari, currently working at the Max Super Speciality Hospital in Dwarka, Delhi, is a highly respected gynecological oncologist with a distinguished career in diagnosing and treating cancers affecting the female reproductive system. She specializes in managing ovarian, uterine, cervical, vulvar, and vaginal cancers, offering her patients comprehensive care that includes prevention, early detection, surgical interventions, and non surgical treatments. Dr. Sarita's extensive experience and dedication to her field are evident through her active involvement in medical research and education. As a project consultant for the intermittent EARP inhibitor in recurrent ovarian cancers, MAM has significantly contributed to developing innovative diagnostic and treatment methodologies, enhancing the standard of care for gynecological oncology patients. Her role as a fellow at the International College of Robotic Surgeons further highlights her commitment to advancing medical knowledge and improving patient outcomes. Additionally, Ma'am has worked as an assistant professor at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where she was deeply involved in both teaching and research. Ma'am's dedication to the field is also reflected in her position as a junior editorial board member for the International Journal of Gynecologic Cancer. In addition to her clinical expertise, Ma'am is known for her compassionate approach to patient care, ensuring that her patients receive personalized treatment plans tailored to their specific needs. Her dedication to her profession and her patients is reflected in the numerous accolades and recognition she has received throughout her career. Dr. Salita Kumari, Tip Media welcomes you, ma'am. Thank you, Soumya, for the warm invitation. Thank you so much for joining us today, ma'am. Ma'am, we understand, women often juggle numerous household responsibilities, right? And yet their health concerns, let's say the painful uterine fibroids, they can be overlooked, right? Affecting their daily lives. And hence, the access to comprehensive information is crucial, for them to make informed health decisions. So, with that in mind, let's begin our discussion with the most fundamental question that what are uterine fibroids and how common are they among women? ये होता ही क्या है जिनको हम uterine fibroids बोलते हैं? Okay, so first of all, I would like to say that you have chosen a very good topic because जी fibroids are so common and almost every other women will be having it. So जी ये होता क्या है? ये एक ट्यूमर है जो कि नॉन कैंसरस है. जी यूजुअली दे आर नॉन कैंसरस एंड दे अराइज फ्रॉम द स्मूथ मसल या फिर जो यूट्रस की वॉल है उससे वो जी ग्रो करते हैं. इनको हम हमारे लैंग्वेज में लायोमायोमास बोलते हैं.
हिंदी जी में रसौली भी बोलते हैं। एंड जी। इतने कॉमन है कि बाई 50 years ऑफ एज ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ women विल बी डायग्नोज्ड विथ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ओके। ऑल्दो सिम्टम्स उनमें से सारे लोगों को नहीं होता। जी जी। एंड जैसे आपने बोला कि ये बाय द एज ऑफ 50 70 to 80% वुमेन डेवलप कर जाती है। तो इसका मैम सिम्टम्स क्या होंगे जिससे उन्हें पता चले कि ये प्रॉब्लम वो डेवलप कर गए हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट डेली लाइव्स? ओके, सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि आप किसी भी फीमेल में सुनोगे वो ये है कि ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, या फिर जी पीरियड्स के टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग चल रही है। अब जी फाइब्रॉइड के सिम्टम्स ना इस पे डिपेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड्स कितने हैं, उनका जी साइज क्या है, और यूट्रस में भी वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बिल्कुल बीच में है, मसल्स में बीच में जी है। तो जी उनकी वजह से सिम्टम्स डिफरेंट होता जाता है। तो मेन प्रॉब्लम ब्लीडिंग, उसके अलावा हम्म, मल्टीपल अदर इश्यूज आर देयर, लाइक सम women कुड बी हैविंग पेन, नीचे ओके। के एब्डोमेन में पेन होना, बार बार यूरिन आना, जी कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पेन होना, या फिर जी पीठ में दर्द होना। आप जी। देखोगे कि ये सारे सिम्टम्स मेजॉरिटी ऑफ women को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या अदर होते हैं। सो ओके। ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, बट जो ब्लीडिंग वाली सिम्टम है वो डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, बिकॉज उससे हमारा डे टू डे वर्क हैम्पर होता है। ज्यादा जी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो जाता है, जी यू हैव टू टेक लीव फ्रॉम योर वर्क प्लेस, फिजिकल जी एक्टिविटी कम हो जाती है, एंड स्ट्रेस तो होता ही है। जी। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि ये डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, पेनफुल भी बहुत हो सकता है और कॉमन भी बहुत है। तो जैसे आमतौर पे महिलाओं की आदत होती है ना खुद को ब्लेम करने की, कि भैया ये तो मेरी ही गलती से कुछ हो गया होगा। तो अब ये एक एप्रीहेंसिव महिला का ही सवाल मैं लूंगी कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स? ये डेवलप क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा कि फाइब्रॉइड्स सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, मतलब उस पीरियड में हम्म, होते हैं जब प्रेगनेंसी, चाइल्ड बेयरिंग, मेनोपॉज जी से पहले होते हैं। बहुत कम वेमेन में मेनोपॉज के बाद मिलते हैं, या फिर जब जी हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद ही होते हैं वो। जी। इसलिए तो आप पहली चीज तो ये समझ सकते हैं इससे कि ये किसी की पर्सनल, कोई ऐसे आपने कुछ कर नहीं किया जिसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है। सो दे जी आर ड्यू टू हॉर्मोन्स। ओके, जी एवरी जी फीमेल के लाइफ स्पैन में हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, एंड वो हॉर्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जी उन्हीं की वजह से फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ होता है। तो इसीलिए जी। एक जनरल कमेंट ये भी रहता है कि मेनोपॉज के बाद छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स तो अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ फाइब्रॉइड्स जेनेटिक होते हैं। अगर आपके जी फैमिली में आपके मदर को या उनके मदर को फाइब्रॉइड्स रहा है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको भी फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हो सकता है। ओके। थर्ड होता है कि दे आर मोर कॉमन इन ब्लैक women, लाइक ओके। साउथ एशियंस एंड ब्लैक women, दे आर जी। लेस कॉमन इन अमेरिकन women। एंड ओके। लास्ट, लाइफस्टाइल की चीजें जैसे ओबेसिटी, हम्म। अल्कोहल, जी रेड मीट कंजम्पशन, मतलब वो सारी चीजें ना जो हमारे लाइफस्टाइल को सेडेंटरी बनाती है, उन चीजों से जी। होता है। एंड कुछ फाइब्रॉइड्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी देखा गया है कि उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके। राइट राइट। और मैम जिनमें ये डायग्नोज जैसे जिनमें ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं या ये यूट्राइन फिब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर्स इनको डायग्नोज कैसे करते हैं? हाउ आर यूट्राइन फिब्रॉइड्स डायग्नोज्ड एंड व्हाट आर द टिपिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाइक डॉक्टर्स योरसेल्फ वुड एम्प्लॉय फॉर सच वुमेन? ओके, सो फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। सबसे पहले आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एक क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब एक गायनी चेकअप होता है। उसमें हम नीचे से ना वी लुक की यूट्रस का साइज जो नॉर्मल है उससे बड़ा तो नहीं है। अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम फर्स्ट टेस्ट करते हैं वो अल्ट्रासाउंड होता है, जी अल्ट्रासाउंड पेल्विस। उसमें हमें ये पता चलता है कि फाइब्रॉइड है या नहीं है, और अगर जी है तो वो साइज में कितने हैं और किस एरिया में है। जी उसके अलावा वी ऑल्सो डू एमआरआई, बिकॉज एमआरआई अल्ट्रासाउंड से बेटर पिक्चर बताती है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है,
एंड अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं किन्हीं में और हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जिनको रिमूव होना ही पड़ेगा, या फिर कौन से ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जिनसे उनके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो जी उसके लिए जी एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली कभी कभी वी जो फाइब्रॉइड्स अंदर की तरफ होते हैं, आई मीन उनको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, उनसे जी। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। वो ऐसे अच्छा। फाइब्रॉइड्स होते हैं जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो ओके। उनके लिए वी पुट ए स्मॉल कैमरा फ्रॉम द यूट्रस इनटू द ओके। यूट्रस, एंड देन हम्म। हम उस कैमरे में अंदर से देखते हैं कि वो फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, किस वॉल पे है, उसको रिमूवल जी। पॉसिबल है या नहीं। तो ये दो ओके। तीन चार सिंपल टेस्ट हैं। जी जी मैम। जी। और जिनके टेस्ट कंफर्म हो जाते हैं तो उन पेशेंट्स में आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज करते हैं? सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यूट्राइन फिब्रॉइड्स, लेट्स से बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट तभी रेकमेंडेड है जब उसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं, बिकॉज अगर हम 100 women का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसमें से आई टोल्ड इन 80 यू विल हम्म। फाइंड सम और द अदर फाइब्रॉइड, दे विल बी वेरी स्मॉल। एंड जी पेरिफेरल्स में क्या होता है ना कि लोग उसी से बहुत डर जाते हैं, एंड जी। एक छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लिए पूरी हिस्टेक्टमी हो जाती है, जो जो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके। वो फील राइट। कि उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम उस 1 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड से हो रही है। तो ये जी मेन मैसेज है जो वी हैव टू स्प्रेड टू द कॉमन पब्लिक, दैट नॉट ऑल फाइब्रॉइड्स लीड टू सिम्टम्स, और ट्रीटमेंट भी उन्हीं में होते हैं जिनमें सिम्टम्स होते हैं। अब जी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो हमने देखा कि मेजोरिटी ऑफ देम आर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। जी तो जी। मेडिसिन भी वैसे ही होते हैं, लाइक ओके। सिंपल बर्थ कंट्रोल पिल्स, या हम्म। फिर मिरेना, या फिर एक इंजेक्शन होता है जीएनआरएच एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। वो सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम कर देते हैं। तो जी जी जिन हार्मोन की वजह से फाइब्रॉइड का ग्रोथ हो रहा था वो कम हो जाता है। जी उसके अलावा वी गिव सम मेडिसिन फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड जिनको ब्लीडिंग जी ज्यादा है, या फिर एनेसिड्स, या फिर मेफ्टल्स्पाज कॉमन जी टैबलेट का नाम आपने सुना होगा, जिन जो पेन जी को जी जी कंट्रोल करता है। जी अभी ये तो मेडिकल ऑप्शंस हो गए। सर्जिकल ऑप्शंस भी अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। जी सारों में हम स्ट्रेक्टमी नहीं कर सकते, एंड जी फाइब्रॉइड का साइज क्या है, लोकेशन क्या है। तो इन फ्यू वुमेन वी ओनली रिमूव दी फाइब्रॉइड्स, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं। जी कुछ में हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है जिनको मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं हुआ, या फिर फाइब्रॉइड्स का साइज इतना ज्यादा है कि उस पे दवाइयां काम नहीं करेंगी। ओके। एक और ऑप्शन होता है, वो सर्ज बिटवीन मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। उसमें हम जो फाइब्रॉइड में ब्लड सप्लाई है, उस जी ब्लड सप्लाई को कम करते हैं। जी उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। उसकी जी। ब्लड सप्लाई कम करने से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ओके। एंड एक और ऑप्शन होता है जो अभी न्यू है, उसमें वी यूज्ड अल्ट्रासाउंड, एंड वी यूज टाइप ऑफ हीट ड्यूरिंग ओके। दैट अल्ट्रासाउंड टू बर्न द फाइब्रॉइड टिश्यू। वो जी भी जी पेट के ऊपर से होता है, मतलब वो भी नॉन सर्जिकल है। तो अभी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स। जी। और अभी जैसे हमने बोला कि किसी भी इलाज या सर्जरी से रिलेटेड अगेन एक बहुत कॉमन सवाल है जो कोई भी पेशेंट यूज करने से पहले या सर्जरी के लिए हाँ करने से पहले पूछेगा, आदि कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क क्या है? ठीक है। सो व्हाट आर दी पोटेंशियल रिस्क्स एंड साइड इफेक्ट्स associated with different treatments of uterine fibroids? ओके, सो अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो मेडिकल ऑप्शन है, उसमें यूजुअली वेट गेन होता है, मूड जी। स्विंग्स होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक्चुअली एक पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट बना देता है, क्योंकि ओके। हार्मोन्स का अमाउंट कम हो गया। तो मूड जी चेंजेस होता है, या फिर लॉन्ग रन में ना बोन लॉस होता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो ये इंजेक्शन होते हैं जिनसे हम हॉर्मोन्स को रोकते हैं। जी बाकी ऑप्शंस जैसे हमने बस फाइब्रॉइड रिमूव किया, यूट्रस इंटैक्ट है, तो उनमें हमेशा एक रिस्क रहता है कि फाइब्रॉइड्स दोबारा बन सकते हैं, जी क्योंकि हमने बस फाइब्रॉइड को रिमूव किया, हमने कॉज को नहीं एड्रेस किया है कि वो हो क्यों रहे जी हैं। तो एनी जी। टाइम देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड कमिंग बैक। हम्म। हिस्टेरेक्टमी का मेन साइड इफेक्ट ये है कि फर्टिलिटी चली जाती है। तो जी यंग पीपल में ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, या हम्म। फिर जिनको अभी प्रेगनेंसी चाहिए, उन जी पेशेंट्स जी में।
फिर से जो फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई रोकने वाला ट्रीटमेंट है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उस वो ब्लड सप्लाई यूट्रस का तो रिमूव होता है, बट कभी हम्म। कभी ना इवन ओवरीज का ब्लड सप्लाई दे हैम्पर। सो ओके। इफ दैट हैपेंस देन प्रीमेच्योर मेनोपॉज का रिस्क होता है, या फिर ओके। पेन, प्रोसीजर के बाद पेन, या फिर इन्फेक्शन, इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। जी। सेम सेम जो अल्ट्रासाउंड वाला ट्रीटमेंट है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड में हीट यूज करके बर्न करते हैं, उसकी ये जी। प्रॉब्लम है कि वो बड़े फाइब्रॉइड्स में काम नहीं करता। तो ओके। हर मोडालिटी के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। सो वी हैव टू चूज ईच ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर आवर पेशेंट, मतलब आफ्टर डिस्कशन विद द पेशेंट, कि ये सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से जो हम देखना चाहते हैं, जो बेस्ट हो उनके लिए, वही करते हैं। जी। जी मैम। And the ones who have undergone a particular procedure, another important question that comes to my mind is regular checkup. Again, जिसके लिए ladies या women थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं. So, how often should women with fibroids, or let's say who have undergone the treatment, should undergo proper follow-up visits or monitoring with their doctors? ओके, सो अगर आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया एंड 4 सेंटीमीटर से कम का फाइब्रॉइड है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, तो जी। देन आप एटलीस्ट साल में एक बार रिपीट कर सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड, या ओ, फिर एक बार फॉलो अप कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि वो ग्रो तो नहीं हो रहा, ठीक है। अनलेस आपके सिम्टम्स नहीं आ रहे हो। जी। एंड जिन पेशेंट्स में हमने कुछ ट्रीटमेंट किया है, पहले सिम्टम्स भी थे, तो उनको फ्रीक्वेंट फॉलोअप चाहिए, मे बी 3 to 6 मंथ्स में, जी। 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 बिकॉज वी वांट टू सी कि जो हमने ट्रीटमेंट किया है उसका इफेक्ट आया या नहीं। तो वो जी। हम रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर रिपीट एमआरआई करते हैं, देखने के लिए कि साइज कम हुआ है या नहीं। जी। एंड जी। जिनमें भी हमने ट्रीटमेंट किया है वो एक बार रेगुलर फॉलोअप पे तो रहते ही हैं, बट वो ओके। इंटरवल कितना होना चाहिए वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। ठीक है. Depending upon the case type and the surgical modality used, right? And आपने भी शुरू में बताया कि वो सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हमें पुश करते हैं are also a contributing factor to the development of these uterine fibroids. तो मैम, what lifestyle changes can women adopt to manage symptoms of uterine fibroids effectively? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटेन योर वेट और मेंटेन योर बीएमआई। जैसे ठीक ही है. ओबेसिटी की तरफ हम जाते हैं ना, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है, उस फैट से एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स भी बनने लगते हैं, जी. तो फाइब्रॉइड के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। एंड इवन फाइब्रॉइड्स में कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म पे है। ओके. अराउंड 1 in 100 fibroids can be having cancer if they are जी. growing very fast, जी. and if they are found in particularly women who are more than 50 years of age, तो ये सारी ओ- चीजों पे ध्यान रखना है। आई मीन टू से कि अगर आपको ओबेसिटी भी है और ये सारी चीजें हैं, तो आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी. जी. दूसरा, डाइट। ठीक है. डाइट इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। रेड मीट जी. कम करना है, अल्कोहल कम करना है। जी. 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 फिर से स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो फीमेल्स जी. में बहुत लैकिंग है अभी तो। So, जी. what we have to do, see, I understand that now we all are working and multiple responsibilities होती है, but उसमें आपको अपनी बिल्कुल. हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना। You बिल्कुल. try to find out time for yourself, dedicate a fixed amount of time to yourself, do some meditation, do some yoga, okay, जी. go for a brisk walk, and हम्म. एंड वन मोर थिंग, जिनको भी फाइब्रॉइड की ब्लीडिंग की वजह से अनीमिया डेवलप हो गया है, उनको ओ- अपने फूड में आयरन रिच चीजें लेनी है। जी. वो जी. आयरन रिच चीजें बहुत कॉमन होती हैं हमारे घर में, हर किसी घर में पाई जाती हैं, बट जी. वी डोंट टेक इट, सो एटलीस्ट वो हमें लेनी है। राइट. राइट. एंड मैम, जैसे अभी आपने बोला कि जनरली जो एसिम्टोमेटिक यूट्राइन फिब्रॉइड्स होते हैं तो उनको हम आमतौर पे ट्रीट नहीं करते हैं, बट उनकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इन सर्टेन केसेस देयर आर पीपल अगेन जो वो मॉनिटरिंग से भी कतराएंगे, प्रोबेबली बिकॉज अगेन ऑफ थोड़ा डर लग सकता है, टाइम नहीं हो सकता है. तो ऐसे केसेस में what are the implications of untreated uterine fibroids on women's health in the long term? ओके, तो
पहली चीज जो मैं काफी टाइम से बोलते आ रही हूँ वो ये है कि अगर आपको फाइब्रॉयड की वजह से हेवी ब्लीडिंग है और जी अगर आपने लॉन्ग रन में उसको नेग्लेक्ट किया है या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आप एनीमिक हो जाओगे। मतलब आपका जी हीमोग्लोबिन जो एक फीमेल के लिए नॉर्मल 11 है, आपका जी। वो 7 8 पे चलता रहेगा। आपको फटीग ओके। होगा, थकावट होगी, मतलब आपको लगेगा ये सारी चीजें आपके लिए यूजुअल सिम्टम्स है, बट अगर आप हम्म। ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा एंड ओके। हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। तो ये जी। बहुत ज्यादा कॉमन है। लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते बट अनीमिया को टॉलरेट करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट जो ये होता है कि क्रॉनिक पेन, सी हम्म। वी टेक मेडिसिन टू डिक्रीज द पेन, बट अगर आपको राइट। इतना पेन है जो आपके डेली डेली लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो जी। लॉन्ग रन में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। राइट। नेक्स्ट है बिल्कुल। हमने हमें मान लीजिए किसी पेशेंट को इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है जी जी जी। बट उनको फाइब्रॉइड भी है, तो देन उनको इनफर्टिलिटी एस्पेक्ट से जरूर मिलना है, बिकॉज कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं, ऑल्दो फाइब्रॉइड्स प्राइमरी कॉज नहीं होते इनफर्टिलिटी होने के, बट कुछ फाइब्रॉइड्स जो ऐसे पर्टिकुलर जगह पे हैं जी। तो उनको इनफर्टिलिटी जरूर होती है और ओके। सारे को नहीं होती। तो ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, बिकॉज विमेन फील कि अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया है उसी से मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओके। उसके ओके। अलावा मेजर मेजर बहुत सारे कारण हैं जिनसे प्रेगनेंसी नहीं होती, फाइब्रॉइड तो उनमें सबसे पीछे है। ओके। ओके, राइट। सो ये सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो इफ यू हैव एनी ऑफ देम, लाइक ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है, या फिर आपका एज 50 से ज्यादा है जो मैंने अभी पहले बोला, एंड आपको ये सारे सिम्टम्स भी हैं, तो जी। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो फाइब्रॉइड कैंसरस हो गया हो। ओके, यस। वो नेग्लेक्ट नहीं करना, बिकॉज दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन एंड इट्स टाइमली मैनेजमेंट इज क्रूशियल। लाइफ थ्रेटनिंग है बिल्कुल। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग एंड वो कैंसर अच्छा नहीं होता, वो बहुत जल्दी बिल्कुल। स्प्रेड करता है एंड वो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत कम है। तो वो शुरू के स्टेज में डिटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो ये ओनली दीज आई वुड लाइक टू से। Ji, ma'am. Ji. And now I'm going to come on to something that I think you and I together have been working for a very long time is, empowering women. तो इसको हम थोड़ा सा एक हेल्थ लिटरेसी के एंगल से भी देख लेते हैं. सो कैन हेल्थ लिटरेसी प्ले इन empowering women to make informed decisions, particularly about fibroid management? Yes, and I feel this is very much important in India because the जी type of society we live in, जी. for everything, there is some or the other blame on the women. Yes. If she is not able to conceive, that is a problem in women. Men even जी don't get tested. जी I have seen so many of my patients, and जी even if she is not able to do her daily activities, despite she is having a fibroid, everyone will blame it on her. So yes. if it is very important कि एक वुमेन को पता हो कि मेरा जो फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है वो ऐसा है भी क्या कि जिसकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने आपको जी बताया ना मेजोरिटी में कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, बट वो yes, उस ma'am. स्ट्रेस को झेलते रहते हैं कि जी मुझे फाइब्रॉइड है और मुझे कुछ बीमारी है। जी तो इफ दे आर लिटरेट, इफ दे आर अवेयर कि मेरे को सही में क्या प्रॉब्लम है, जी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझें। ट्रीटमेंट ऑप्शन सारे सिंपल होते हैं, ऐसा जी नहीं है एंड एक और चीज की हर फाइब्रॉइड के लिए हिस्टेक्टमी नहीं होती, जी अदरवाइज अननेसेसरी हिस्टेक्टमीज इतना कॉमन है इंडिया में, जी particularly in peripheries. So जी there are men who bring their wife and they tell me कि इनका ना यूट्रस निकाल दो उसमें प्रॉब्लम हो गई है. So that is the kind of society we live in as of now. So I feel that if women are health literate, they would be able to be more empowered and take proper decision. जी जी. और अभी जैसे आपने कहा कि बहुत इंडिया में खासकर ये प्रॉब्लम है कि आप दर्द बर्दाश्त करोगे, आप वो अनीमिया के सिम्टम्स बर्दाश्त करोगे एंड यू गोइंग टू लिव विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए हमारे पास कुछ सपोर्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो अपने इमोशनल और फिजिकल चैलेंजेस को थोड़ा सा उनके साथ में डील कर सकें, स्पेशली यूट्राइन फिब्रॉइड्स की वजह से जो बन जाते हैं. हाँ है। अर्लियर मुझे ये लगता था कि बस यूएस और यूके जो डेवलप्ड नेशंस हैं वही अपने
कॉमन पीपल के बारे में ऐसे एजुकेशनल मटेरियल्स रिसोर्सेज बनाते हैं, बट जी रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा है कि अब इंडिया में भी सारी चीजें हैं. देयर आर जी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स हु ओके आर यस हु आर फॉर्मुलेटिंग एविडेंस बेस्ड मटेरियल्स एंड जी डिसेमिनेटिंग द पब्लिक. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसकी एडवाइस ले रहे हैं, जी क्योंकि यूट्यूब पे, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग हैं. मैं बिल्कुल देखती हूँ कि लोग उनका ज्ञान लेके अपने इवन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं कराते. दे जी कम टू, बिल्कुल निकल दे विल टेल मी कि नहीं, हमें तो ना उन उसने ये बताया है कि इससे इलाज हो जाता है. तो उन चीजों के लिए आपके पास भी कोई आंसर नहीं होता कि आप उनको क्या बोलो. सो बेशक ये मिस बिलीफ, मिस इन्फॉर्मेशन, दीज आर वेरी कॉमन. तो ऐसे सोसाइटी में एक डेडिकेटेड रिसोर्स को लेके आना जो कि रिलायबल हो, एंड जी उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली उसके बारे में कुछ नॉलेज है. जी तो जी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. इट इज जस्ट दैट वो ज्यादा अभी नोन नहीं है, बट सूनर और जी लेटर आई थिंक दैट पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं हमें और किसको फॉलो करना है. बिल्कुल बिल्कुल मैम okay so I am going to summarize this wonderful session on uterine fibroids by a very interesting question that what should be included in a to-do list for women who are struggling with uterine fibroids so that they can actively manage their condition and improve quality of living their living. And that should be our take home message from today. Yes. Yes. So, first of all, track your symptoms, maintain a diary, visit Right. your doctor regularly, Right. make dietary adjustments, which we had discussed earlier, Yes, do ma'am. regular exercise. Okay, Okay. manage your stress. Consider treatment options when they are provided to you after thorough discussion with your doctor. It is Right. not that कि आपको कुछ बताया गया है तो आपको वही करना है. You can also read about it and then discuss again. And Right. lastly, seek support. Yes. Uh, Seek support from organizations who are doing work in that area. Seek support from patients who have been treated earlier for uterine fibroids. So Right. they may be able to guide you better. Right, ma'am. So, tracking the symptoms on a regular basis, maintaining a healthy lifestyle, open discussion with your doctors, and of course, emotional support. Seek karne ke liye. I think on that wonderful note, I really appreciate your presence with us today, ma'am, and I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to many women out there. And I hope जितनों ने भी डॉक्टर सरिता को सुना है, please do not blindly follow a social media influencer. Do follow the right platform, the doctors. सही information को चुनिए. I think should be the key here, right, ma'am? Okay. So thank you so much for joining us today, ma'am. It's really been a pleasure. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again.